So electric field lines, what are those? Electric field lines are actually used to represent the electric field. The electric fields. That means that electric field lines they move from positive to negative. That is actually correct. So electric field lines are basically the pictorial representation of electric field. That is how electric field varies or how it actually exists in a real space. All right. So there are some of the properties of electric field lines. That is the first one, as Gia mentioned, that it moves from positive charge to negative charge. It is starts from positive to negative. Second, any other, if you guys can remember, anyone? Yeah, perfect. So they do not intersect each other, just like you mentioned, right? Any other that you can think of? So I'll help you guys. The number three is that their closeness or density. Closeness represents the strength of the electric field. All right. Anything else? Anything else? Another one could be, I mean, like there are multiple properties. I'll just speak them out and just let me know if you guys have any doubt understanding in those. So they cannot intersect each other. That is definitely correct. And if we have a uniform field, then the field lines are definitely straight and they're uniformly spaced. Since they're uniformly spaced, that means that the strength of the electric field is actually uniform or same in all the region. Any doubt in this part, guys? No. Next, that is electric field lines in a conductor. The electric field in a conductor, that is absolutely zero. And another important point is that electric field lines are always perpendicular to surface of conductor. That is, regardless of how the conductor is placed, electric field lines will always be perpendicular to them. Any doubt in this part, guys? All right. So let's just move ahead and I'll help you with a couple of charges distribution. So the next topic that we'll be starting will be charge distribution. So in general, for an extended object, charge can be distributed in three different types. The first one being a linear charge distribution or a line charge distribution. Second one is surface charge distribution, and the third one is volume charge distribution. Right? Familiar with this? So let's just start. So let's just start with the very first one, that is linear charge distribution. What does this even mean? So let's just say that you have a straight line over here and some charges distributed on this straight line. Let's say a total of q charges distributed and the length of the straight line is simply L. In this case, we can actually define something called linear charge density, that is lambda, and that is actually defined as the total charge over total length. Right.
So over in this case, lambda should be equals to Q over L. That is, whatever the total charge we have over in this case is Q divided by the total length that is available over in this case is capital L. Any doubt in this part? Now this is for a linear charge distribution. Now if you just look up for a very small length of dx. Now if I consider a section of it whose length is dx, so in this case lambda should be equals to something dq over dx. That means whatever the small charge that small length is holding divided by this dx. Over in this case, dq can be calculated as lambda times dx. Right. This is the small charge. So if you have dq and you want to get the total charge available, how can you do so from this small charge? Any idea? We have the small charge and we are interested to get the complete charge. All you have to do is do the integration of it. So if you just do the integration, you get q equals integration of lambda times dx. So to calculate charge from a given linear charge distribution, we generally try to use this particular formula. Any doubt in this part? Second one, over here what we have is surface charge distribution. So for a surface charge distribution, Nandini, yeah, better. So for a surface charge distribution, the charge is now distributed over a complete surface instead of being just a line or a length. So let's just say that you have this complete sheet, and over this complete sheet the total area is simply A. The total charge that is given to this is Q. So in this case, if you define the sigma is known as surface charge density. So what could that be? That is total charge over the total area. That is sigma equals total Q over A. Likewise, if I just select a very small area, so I can actually find out, that is for a small area dA, I can actually use that sigma equals dq over dA. From here, dq would be equals to sigma times dA. To get the net charge, just do the integration. So what are you left with? Integration of sigma d. Following this part? Anyone? Any doubt? Next part, for the third case, it is volume charge distribution. So for a volume charge distribution, what we have over here is the charge is completely distributed over the complete volume. Let's just say that the volume for this shape is simply V and the charge is Q over here. Alright. So in this case, we can actually define rho. Rho is defined as volume charge distribution, that is the total charge over the total area. Sorry, total volume. Total volume. Right. So rho should be equals to Q over volume. Rho should be equals to Q over capital V. Right. Now, if you just consider a small volume in this case, so for a small volume dV, rho should be equals to dq over dV. From here, you can actually get the value for dq as rho times dV. Do the integration. What are you left with? That q should be equals to integration of rho dV. Following this, guys? Yes, So sir. Yes, it is sir. almost the same as I mean all three are almost the same. It's just that their symbols they differ a little bit. All right.
So what's the actually reason behind this that I actually taught you this part? It's because we will be now diving into the electric fields of uh, some definite shapes. Right. So the very first one or the very first shape that we are interested in is electric field due to a ring. That is electric field due to charged string. Alright. So please draw this diagram in your notebooks. Guys, please try this out. Draw this diagram and just let me know when you are done. So if the charge is positive, then the electric field due to this particular charge will be somewhere over in this direction. That is along the axis but away from it. Alright. So this will be the net electric field. Now I'll write down the formula right now. So the net electric field formula is E equals KQX over R square plus X square power Q over 2. Following this part, guys? This is Yes, the net sir. electric. This is an important formula. Always remember this. That star mark this. It's an important formula. Next, over here, let's just say that the ring is negatively charged. Then what do you think will happen? Any one of you? If the ring is negatively charged, so there are actually two different ways to do this. The first one being definitely just like you guys said, that is just instead of using Q, we will just simply use negative Q over there, right? Now the second way and the actually more efficient way is, let's just say that you have a ring over here and I'm actually trying to find out the electric field at this particular point. Alright, so in this case the electric field from this point will be somewhere over to the left. Agree with this, guys? Yes, Uh, sir. somewhere over here in this particular direction. Now since you have already chosen the direction, you will not be using negative now. The value that you will still be using is KQX upon R square plus X square power 3 by 2. Right. So you will be using only one thing, that is either you put negative Q over here, you don't bother with the direction, or you actually deduce the direction by yourself and you still use the same formula as the above. Any doubt with this part? So let's just move forward. Next part. Let us start with something called electric dipole. What exactly is electric dipole, guys? Any Sir, idea? when two opposite charges are kept in such a way that the distance between them is almost negligible. Perfect, perfect. Now, just to add to Suhang's definition, the opposite charge must be equal in magnitude. All right. So let's just say that you have a charge over here that is negative q, and you have a charge over here that is positive q. All right. Now the distance between them
is very small. That is, the distance between them is actually small distance. Then in this case, this configuration is known as dipole. Alright. Now, how do we measure the strength of a dipole? We measure the strength of a dipole using something called dipole moment. Correct, guys? So, dipole moment. What exactly is a dipole moment? So, dipole moment basically means that P should be equals to the strength of any one of the charges, that is Q, multiplied by the distance between them. Distance between negative Q and positive Q. So over here, we deliberately take the distance between negative Q and positive Q to be 2a. So P should be equals to 2a Q. Any doubt in this part, guys? No, sir. No. No, sir. Alright. So the dipole moment is basically the strength of the dipole. And what exactly is a dipole? Dipole is a system of equal and opposite charges separated by a small distance. Alright. Now, Yes, sir. what we can do is we can actually find out electric field using this on two different parts. That is, let's just say that electric field on axis of dipole. How can we measure the electric field on the axis of dipole? Let's just say it is Yes, negative sir. q over. No. I'm explaining you the part. That let's just say that we have the negative q over here, and over at the right we have positive q over here. All right. So what are we interested in? Is we are interested to find the electric field over at this particular point. All right. At this over at this particular point. So in this case, this is called the center of the dipole. All right. The center of the dipole, the distance from each point is simply a. Next, all distances are measured from center of dipole. All right. Now over at this point P will experience two different electric fields, one due to positive Q and one due to negative Q. Now, how can you actually identify those? That is, let's just say the distance between here to here, point P, is simply x, or let's just take r. So the distance from uh, this positive Q would be r minus a, and the distance from the negative Q, it would be r plus a. All right, r plus a. Now we are interested to find the electric field at point P. So the electric field at point P or on the equatorial point is simply given as 2k, sorry, 2 kp upon rq. Now this is the electric field on point P. This is only the strength, right? Now electric field, is it a scalar quantity or a vector quantity? Electric field, is it a scalar quantity or a vector quantity? Since it is a vector quantity, that means that it must also have a direction, right? Yes, sir. So to actually Yes, get the sir. direction is always in direction of light. All right.
So whatever the direction of the dipole is, that will be the direction of the electric field in this point. Now the dipole, we actually discussed that dipole, what exactly is a dipole and what is dipole moment. Now for the direction of a dipole, anyone has an idea from where to where? Minus Anyone of Q you? to positive Q. Perfect. Negative to positive. Perfect. So the direction is always from negative Q to positive Q. Right. In a similar fashion, the electric field, if you are interested in electric field of on the axial point, so the formula would be 2 kp by r cube, and the direction would be in the direction of dipole moment. Following this part, guys. Next, electric field on the equatorial axis of a dipole. All right. So again, let us just try to draw a dipole. That is, this is negative q. If you are interested to calculate, it is this particular point would be plus q. Right. Now, what we are interested in is we are interested in to find the electric field over at this particular point. That is point P. So for this point P, the distance would be A over here, the distance would be R over here. For this point P, what do you think the electric field direction should be from the negative Q? Any idea? हाँ, आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा नेगेटिव की तरफ आता है एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके पास पॉजिटिव की तरफ आता है. सॉरी, पॉजिटिव से अवे जाता है. माय बैड. Okay. राइट. तो सो थोड़े ओवर हियर पॉजिटिव अगर से आप आगे जाता है. यहाँ पे, हाँ जी, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव की तो तरफ आएगा, बट पॉजिटिव से क्या करेगा आपके पास यहाँ पे आगे अवे जाएगा. जाएगा. अगर पॉजिटिव से अवे जाएगा तो कुछ ना कुछ एक इस ये टाइप का आपके पास यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलेगा. राइट गाइस. सो ओवर हियर निश्चय. if you find out the net electric field would be somewhere over in this particular direction. Agree with this? Yes, sir. All right. So over here, this would be the net electric field. If this is the net electric field, so the formula for this case, that is E equatorial, it would be Kp by R cube. Again, electric field, is it a scalar quantity or a vector quantity? It's a vector quantity. So if it is a vector quantity, that means that it must also have a direction. So in this case, if you are interested to find the direction, it is always opposite to that of dipole. All right. So what is the direction of dipole in this case? Negative It is to from positive. negative to positive. Now, if it is negative to positive, and the electric field we are getting in the opposite direction. So if you were to write it in a vector form, how can you write it in vector form? That is E eq. That should be equals to negative of Kp upon Rq. Right. And likewise, if you were to write it, the axial point would be in vector form. I should write just x. Axial point, it should be 2 kp by rq. Any doubt with this part, guys? No, sir. No. Now, if I ask you that there's a point P, it's a quick question. Let's just leave it. The ratio of E axial to E equatorial for same distance. Can you guys please try to find it out? So the thing is actually 2:1 is the wrong answer over here. The answer is not 2:1.
This question was asked in, I guess, 2024, one of the JEE mains exam, that you have to find out the ratio for the electric field in that you have to find out the ratio of the electric field for axial to equatorial part. So the answer is not 2 is to 1. How so? Electric field, is it a scalar quantity or a vector quantity? Scalar quantity. Guys, Vector. it is a vector. It is a vector quantity. So over here, E axial, the formula was 2 kp by rq. However, E equatorial, it was negative kp by rq. Right. If you just take the ratio of E axial to E equatorial, it would be negative 2. Do you understand this part? Yes, sir. Yes, sir. So in that question, which was asked in JEE mains, so obviously 2 to 1 was also present in the option. And many of the students, they generally mark 2 to 1 thinking that their answer is right. But the actual answer was negative 2 to 1. Any doubt in this part, guys? Guys, any part in this case? Any doubt, guys? No, sir. No, sir. Alright. So let us just move ahead to find that is the force on dipole in an external electric field. How can we actually get that? Let's just say that over here there's a dipole that has negative Q charge, and over here there's a dipole that has positive Q charge. In this case, if you were to connect these two, the distance between them would be 2a, right? And there exists an electric field over here whose value is E. Alright. So if a charged particle is placed in an electric field, the charged particle experiences some force. Any idea what that force is? If a charged particle is placed in an electric field, it experiences some force. What exactly is that force? Torque. I'm sorry, Neha. Are you trying to say something? Repulsion. Attraction forces, sir. No, the value of that, the Torque. magnitude of the force. Yes. I'm sorry, Neha. Are you trying to say something? Torque. Yeah, I'm still unable to hear you properly. Anyone else? That is, a charged particle is placed in an electric field, so you have to find out the force. So the force when a charged particle is placed in an electric field is given as QE. Alright, QE vector. definitely correct. Yeah, QE vector, perfect. Or you can also write that plus QE negative QE that G actually wrote. Yes, Great, sir. Gia. In this case, the force experienced by the positive charge. Can you define the direction? What will be the direction of the force experienced by the positive charge? Inward. Inward. Left, Is it inward? No. Uh, left. no, not left. If there is positive charge and it is placed in an electric field, so the force experienced by it is always in the direction of electric field. Alright, Yes. Yes, sir. QE. Over here, the negative charge, it would be in the Left opposite hand direction. side. Positive. That is QE. So over here, if you just have a look, what is the net force over acting? Net force over here, 0. 0. force is simply zero. So here's an important point to note, that is, in dipole experience, zero net force when placed in a uniform
Got this part, guys? Yes, sir. Yes, sir. So we'll be starting with the next topic, that is torque on dipole. So all right, please draw this diagram. I'll be back in a minute. I need to just plug in my laptop. तो over here हमारे पास यहाँ पे डाइपोल है, तो डाइपोल को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एंड इस वाले डाइपोल पे आप अगर पेन देख पा रहे हो, राइट? तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मानते हो, यहाँ पे क्या मानते हो आप, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ फोर्स लग रहा है आपके पास, आगे की तरफ है। नेगेटिव चार्ज को कहाँ फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके पीछे की तरफ में फोर्स लगाता हूँ, ये पेन क्या करना स्टार्ट कर रहा है आपके पास, यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे इसके पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, इस वाली डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक डाइपोल मूवमेंट या फिर जब भी एक डाइपोल का सिस्टम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर क्या लगता है आपके पास, एक टॉर्क लगता है। अगर उस पर टॉर्क लगता है, दैट मीन्स दैट dipole will experience a torque, and that torque is given as any idea, guys? It is Uh, P vector cross E vector. All right. What exactly is P over here? P is the dipole moment. Notice E over here. E is the electric field, right? And tau is definitely the torque that we're dealing with. All right, guys. Yes, Do you sir. understand this part? yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट दिस इज द वेक्टर फॉर्म, बट अगर हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पास। ए क्रॉस बी वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, सिंपली पी ई साइन ऑफ थीटा, राइट? सो टाउ इक्वल्स पी ई साइन थीटा, दैट मींस दैट दैट टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, वेयर व्हाट एग्जैक्टली इज थीटा? थीटा इज 0 एंगल, degree. नहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन पी Electric एंड field. ई, राइट? दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा आपने सिंपली यहाँ पे पुट करना है एंड आप सिंपली क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फोर्स आपके पास लग 0. रहा है, सॉरी कितना टॉर्क लग रहा है। फोर्स तो हमेशा जीरो लगेगा, परफेक्ट। एनी डाउट इन दिस पार्ट, गाइस? No, sir. No, sir. Yes, sir. और No, sir. नहीं, सर वो इक्विलिब्रियम में भी 0 होगा ना सर, क्योंकि इक्वली होगा ना। हाँ, अगर आपके पास हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो, और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होता है आपके पास कि जो भी नेट फोर्स और जो भी नेट टॉर्क है वो सिंपली कितना होना चाहिए आपके पास, जीरो होना चाहिए। फोर्स तो भी अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि वो तो ऑलरेडी जीरो है ही, बस अगर आपके पास टॉर्क भी जीरो हो जाए फिर वो वाली कंडीशन किससे सेटिस्फाई करेगी, इक्विलिब्रियम को, राइट? तो टॉर्क को जीरो करने के लिए टाउ शुड बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा, राइट? नाउ टाउ इज सिंपली इक्वल टू जीरो, दैट मींस साइन थीटा भी कितना होना चाहिए आपके पास, जीरो। एंड साइन थीटा Zero. जीरो आपके पास दो कंडीशंस पे होता है, कब कब, तो थीटा कितना हो जाए आपके पास 0 डिग्री एंड थीटा कितना हो जाए आपके पास 0 180 डिग्री। 180. तो ये दोनों ही कंडीशन आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। हाउएवर आपके पास इसमें से एक कंडीशन आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, एक कंडीशन आती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आप 0 डिग्री का चेक करते हैं तो, एंड ये क्या होता है आपके पास, अनस्टेबल। अब ये स्टेबल अनस्टेबल क्या चीज है ये भी समझते हैं कि क्या है, राइट? यहाँ तो कोई भी डाउट है किसी को, गाइस? No, sir. No, sir. Alright, perfect. Now the next thing that we're going to start is something called work and energy of dipole. तो हम अभी यहाँ पे वर्क और एनर्जी से रिगार्डिंग बातें करेंगे, जैसे कि क्या कि अगर मान लो कि आपके पास एक डाइपोल है, ये नेगेटिव क्यू ओवर हियर इट इज पॉजिटिव, राइट? In this case
अगर आपको इस वाले डाइपोल को रोटेट करना है किसी पर्टिकुलर एंगल से, ये तो मैंने बहुत सिंपल से बना दिया, चलो थोड़ा गंदा सा बनाता हूँ। लेट अस से कि आपके पास यहाँ पे अभी के लिए प्लस थीटा, दोनों आपके पास अभी के लिए कुछ ऐसे हैं, एंड बाहर की साइड पे इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। आपने इस वाले डाइपोल की जो अभी के लिए इनिशियल एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, दैट इज थीटा वन। थीटा वन क्या है? इनिशियल एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, नाउ you rotate this dipole। आपने इस डाइपोल को रोटेट किया टू एंगल थीटा टू। थीटा टू तक आपने इस वाले एंगल को रोटेट किया। जब आप किसी भी डाइपोल को थीटा में एंगल से थीटा टू तक रोटेट करते हैं तब आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वो आप कितना वर्क डन करोगे एक्चुअल में, तो उस वाली चीज का यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल्स टू पीई ब्रैकेट cos ऑफ थीटा वन माइनस cos ऑफ थीटा टू। ऑलराइट, यहाँ पे अगेन पी क्या है? यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, पी कांस्टेंट नहीं है। पी क्या है आपके पास? डाइपोल डाइपोल मोमेंट है। Uniform डाइपोल moment. डाइपोल एंड ई क्या है आपके पास यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड Electric field. एंड कॉस तो एक फंक्शन है, वो आप सबको पता है। थीटा वन एंड थीटा टू आर द रेस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ डाइपोल इनिशियली एंड आफ्टर रोटेशन। फॉलोइंग दिस पार्ट गाइस, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर इज द एनर्जी। So how exactly can we calculate the energy? Energy can always be calculated with respect to something. Alright. So over here, since the dipole is only rotating about its axis, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? आपके पास जब भी डाइपोल आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, when theta equals 90 degrees, then potential energy of dipole is zero by convention। मतलब हम सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि जब भी आपके पास डाइपोल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस वाले टाइम पे जो कि पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की वो सिंपली कितनी रहेगी? आपके पास जीरो के बराबर में रहेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन, ताकि हम एक एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकें कि कितनी आ रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल का? पता है गाइस क्या होता है? नेगेटिव पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। राइट, तो अभी क्या चीज है? यू क्या है यहाँ पे आपके पास? यू है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका? डाइपोल का। डाइपोल का अगेन ई क्या चीज है यहाँ पे आपके पास? डाइपोल मोमेंट। एंड ई क्या चीज है यहाँ पे आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो जैसे अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दो टाइप के इक्विलिब्रियम थे, कौन कौन से? जो स्टेबल था, एक कौन सा था आपके पास? अनस्टेबल। राइट, अब मैं यहाँ पे आपसे आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या है कि मान लो परफेक्ट, आपके पास एक पहाड़ है, ठीक है। अब जो ये एक्चुअल में पहाड़ है, कुछ आपके पास इस टाइप का यहाँ पे पहाड़ है। आपने एक बार तो क्या किया, एक बॉल को यहाँ पे रखा, ठीक है। मैं इस वाली पोजीशन को बोल रहा हूँ पोजीशन वन। एक बार क्या किया, आपने बॉल को यहाँ पे रखा, इस वाली पोजीशन को क्या बोल रहा हूँ आपके पास? पोजीशन टू। अब क्योंकि पहाड़ है, मान लो कि यहाँ पे हवा चली हल्की सी, अगर हवा चलेगी तो बॉल क्या करेगी? अपनी जगह से हल्का सा डिस्प्लेस करेगी। एग्री करते हो यहाँ तक गाइस? Yes. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि थोड़ी सी हवा चलने के बाद में जब आप थोड़े टाइम के बाद में देखोगे, कौन सी बॉल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी? Which ball One. will do its पोजीशन वन पोजीशन वन? क्यों सेकंड वाली क्यों नहीं? क्या वो अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और चली जाएगी? यस सर Yes, sir. गिर जाएगी नीचे हाँ, वो नीचे गिर जाएगी, या तो लेफ्ट में गिर सकती है फिर राइट में, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की किस साइड में हवा चली है। बट क्या इक्वेशन
क्या पोजीशन 1 पे इस वाली चीज का फर्क पड़ रहा है कि किस साइड में हवा चली है, कितनी चली है? अल्टीमेटली जो भी फाइनल रिजल्ट है No. क्या है कि बॉल 1 क्या कर रही है, No, अपनी sir. पोजीशन पे वापस आ रही है। एग्री करते हो यहाँ तक इस वाली बात पे सारे गाइस? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि 1 और 2 में से किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है? अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, टू की एनर्जी ज्यादा है। हाँ, 2 की हाँ, एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। एंड इसकी कम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास? ज्यादा है। ज्यादा है। आपके पास दोनों में से अपनी पोजीशन पर वापस कौन आ गया था? फर्स्ट वाला, 1. राइट? सो अगर फर्स्ट वाला वापस आया है, दैट मीन्स जो ये इक्विलिब्रियम है ना, ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है आपके पास? एक स्टेबल 1. इक्विलिब्रियम, राइट? अगर ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपके पास? Unstable. Unstable. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट्स द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? Potential energy ion. पोटेंशियल एनर्जी हाई होना चाहिए, और इन आवर केस पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? सो अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या फिर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बिल्कुल मैक्सिमम है, तो इन दैट केस वी विल सिंपली डिफाइन इट एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है, वी विल डिफाइन इट एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? सो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 पर आपके पास क्या आता है? ये क्या आपके पास पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे u के लिए सॉल्व करता हूँ, u के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a डॉट b वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्रीज यूज करता हूँ, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? नेगेटिव PE cos of 0, Minus दैट मीन्स u शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव PE। minus P. एंड अगर मैं cos 180 यूज करता हूँ तो u शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव PE cos 180, दैट मीन्स दैट u शुड बी इक्वल्स टू P। E. फॉलोइंग दिस पार्ट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में से किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? नेगेटिव PE या फिर 180 PE? Positive Negative. P. नहीं, पॉजिटिव की। पॉजिटिव की ज्यादा है आपके पास, राइट? अगर पॉजिटिव की ज्यादा है तो इसी वजह से जो थीटा इक्वल्स टू 180 था, इसे मैंने ऊपर क्या डिफाइन किया था आपके पास कि कैसा इक्विलिब्रियम होता है आपके पास? ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है आपके पास? ज्यादा है। एंड आपके पास इसे हमने क्या डिफाइन किया था कि कैसा इक्विलिब्रियम आपके पास? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कोई भी डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Any idea what exactly is electric flux? So, Anyone? number of electric field lines passing through an object. Perfect. So what exactly is electric flux? Basically the number of electric field lines field line passing through a surface, passing through any surface. passing through a surface. Any surface. So this is what is simply define the electric flux. Now, is there any formula for electric flux? So let's just say that you have an area over here. Before actually defining, just a moment. So before actually defining electric flux, we will actually define something called area vector over here. What exactly is area vector over here? Area vector. So area vector is basically, let's just say that we have this particular sheet over here, right? Now for this sheet, let's say that the area is 100 units. So how can I actually define the area vector? Area vector is simply defined as A equals whatever the area is into n cap. What is this n cap? N cap is the Number of no. N cap is not number. N cap direction. That is a unit vector that is in the direction perpendicular to that of the surface, right? That is, this particular direction is what we generally define n cap. Right? Can you guys see this? Can you guys see this tab?
Yes, Can sir. you guys see this tab? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Over sir. here, I'm just currently holding this tab in this particular direction, right? So the area is completely over here. What do you think will be the direction of area vector? Just place your pen. You can do the similar thing with your notebooks or paper, whatever you are holding on. That is, just place it on your hand. Pick up your pen. The nib, or basically the pointy end of your pen, it should point upwards. Basically, the base, it should be standing on the notebook. So that means that for this case, or for my tab, the area vector is actually in the upward direction for this particular surface. Following this part, guys? Yes, sir. You can also do the same for the bottom part. If you just look at the bottom part, I'm currently actually holding it to make sure that it does not fall. आपने क्या करना है कि वही चीज करनी है, पेन लो, पेन की जो भी आपके पास ये पॉइंटी एंड है, पॉइंटी एंड को दूर रखना है, जो भी पेन का बेस होता है, बेस को उस वाले एंड से टच कर दो. कहाँ पे पॉइंट कर रहा है पेन आपके पास? नीचे की तरफ. तो इसका मतलब इसका एज वेक्टर कहाँ हो जाएगा आपके पास? नीचे की तरफ. नीचे. क्या समझ में आ रही है ये वाली चीज? Yes, sir. चलो, ये फोन है, ठीक है. अब फोन का ये वाला सरफेस है, वही सेम चीज करूंगा मैं. आपके पास ये पेन है, पेन का मैंने ये ऐसे इस पे प्लेस कर दिया. क्या अब इसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? रेडियली आउटवर्ड नीचे जाएगा सर. मतलब आप इसे आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. बट अगर आपने बहुत सिंपली डिफाइन करना है तो कैसा कर सकते हो आप कि टुवर्ड्स द कैमरा. हाँ, आपके पास टुवर्ड्स द कैमरा या फिर टुवर्ड्स द स्क्रीन, कुछ आपके पास इस टाइप से ही ऐसे जा रहा है. समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट गाइस कि आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए आपको एरिया वेक्टर आना चाहिए. तो अगर आप एरिया वेक्टर ही नहीं समझ पाओगे तो आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा. बस एरिया वेक्टर बताओ, क्या एरिया वेक्टर समझ में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? एनीवन? एनी डाउट एट ऑल? नो सर. ऑलराइट, ठीक है. तो अगर आप लोगों को एरिया वेक्टर में कंफर्टेबल हो, सो लेट अस जस्ट डाइव इनटू इट. बिफोर स्टार्टिंग एरिया वेक्टर, आपके पास मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज भी पूछूंगा आप लोगों से. दैट इज, ये क्यूब है मान लो, ठीक है, मान के लो है ही वैसे. आपके पास जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन x है, ये वाला डायरेक्शन y है, ये वाला डायरेक्शन z है. तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट O. ठीक है. अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ. लेट्स से A, B, C, D, E हो गया F एंड G. ऑलराइट. तो मैं अभी लाइक रैंडमली किसी का भी नाम पूछूंगा, आप बस मेरे को आंसर करना है जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है गाइस? Yes, sir. यस सर. ठीक है. मतलब बस मैं यही चीज पूछूंगा कि जो भी इसका एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर आपका किस तरफ में जाएगा, कैसे होगा. तो ठीक है. ताशी, आर यू अवेलेबल? ताशी? Yes, sir. Yes, sir. Alright. So the surface for which you have to tell me the area vector is A, B, C, D. A, B, C, D. आपने A, B, C, D सरफेस का जो भी एरिया वेक्टर है वो बताना है कि वो किस तरफ में आएगा. ट्राई करना चाहोगे एक बार? Yes, sir. So why? वाई. वेक्टर फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म में किस डायरेक्शन, क्या क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में वाई को क्या चीज बोलते हैं? J cap, sir. जे कैप. परफेक्ट. तो आपके पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ऊपर की तरफ में, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा आपके पास? ऊपर की तरफ में. एंड अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो जे कैप. ठीक है. नंदिनी शर्मा, डी Yes, sir. सी एफ जी. डी सी एफ जी, यस सर. इसका एरिया वेक्टर किस तरफ में आएगा? सर बाहर की तरफ. हाँ, मतलब बाहर को आप वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करो. एक्स वेक्टर में सर, इधर आई वेक्टर.
आई वेक्टर, परफेक्ट। तो आपके पास ये किधर आ जाएगा, कुछ इस तरफ में, ठीक है। नेहा, Yes, sir. ऑलराइट, ए बी ओ ई, ए बी ओ ई, Minus I cap. परफेक्ट, परफेक्ट, माइनस आई क्या, और कौन है, अर्चना, Yes, sir. ए डी जी ई, ए डी जी ई, Kcap. ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छे, ये बाहर की तरफ में, ठीक है। सुहाम, Yes, sir. ओ ई जी ई, ओ ई जी एफ, ओ EGF. ई एफ, Minus J क्या? perfect, minus j cap, and last one Ayush Rai, Sir, B C F O, B C F O, so minus k cap. perfect, minus k cap for this, यहाँ पे पीछे की साइड में चला जाएगा कुछ minus k cap, ठीक है। आप लोगों ने सभी ने इसका आंसर्स करेक्ट किया एरिया वेक्टर का, तो आई गेस लाइक यू गाइस आर कंफर्टेबल विद दिस, so we will be moving forward with the actual definition and the actual formula of the electric flux, right? Definition wise आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे को बता दिया कि what exactly is electric flux. Electric flux is the number of electric field lines that is passing through over an area, right? Now for the formula, that is, let's just say that you have a small area over here, that is dA. So for this dA, the electric flux, that is d phi e, is simply defined as E vector dot dA vector, right? That is the dot product of E and the small area vector that we are interested in. So d phi E, it should be equals to E multiplied by dA cos of theta, right? Now if you just do the integral of this part to get the phi total, so this is the net flux, that is integral of E dA cos of theta. This is how we generally define the electric flux, that is the integral of EA or basically EDA cos theta. यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को? No, sir. नंदिनी, No, आपको sir. कोई डाउट है? Yes, sir. शायद आपका भी माइक अनम्यूट हुआ था, आपको कोई डाउट है? नहीं sir. ऑलराइट, परफेक्ट। बाकी किसी को भी? No, sir. No, ठीक है। sir. No, sir. No, अच्छा, sir. ये जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है ना, इंटीग्रल ऑफ ईडीए कॉस थीटा, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला अपने को याद नहीं रखना। जो एक्चुअल में काम का फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला क्या चीज होती है आपके पास, कि जो फॉर्मूला हमें हेल्प करता है एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो वो क्या है आपके पास, इसमें से जो ई होता है ना, वो जनरली आपके पास कांस्टेंट होता है। अगर ई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट चीज क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो फॉर ई और नॉट फॉर, आई शुड राइट व्हेन ई इज कांस्टेंट, ई जब भी आपके पास एक कांस्टेंट रहेगा तब क्या चीज रहेगी आपके पास, ई क्या होगा, इंटीग्रेशन से आपके पास बाहर आ जाएगा। अगर ई आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर आता है, दैट मींस जो भी अब आपके पास यहाँ पे फाई का फॉर्मूला है, फाई का फॉर्मूला क्या बचेगा आपके पास, फाई ई शुड बी इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपकी एक्चुअल में हेल्प करेगा टू कैलकुलेट और बेसिकली टू गेट द आंसर्स एंड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। फॉलोइंग दिस पार्ट गाइस? Yes, sir. ma'am. Sir. तो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शन है, या तो हम अभी जो डेरिवेशंस होती हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उस पे जा सकते हैं, या फिर चलो पहले गॉस लॉ कर लेते हैं, गॉस लॉ करते हैं। कोई आइडिया किसी को गॉस लॉ क्या बोलता है, Yes, sir. क्या होता है गॉस लॉ, किसी को कोई भी आइडिया? The total electric flux passed through a closed surface is 1 divided by epsilon naught times the net charge is enclosed by the surface. परफेक्ट। तो गॉस लॉ बेसिकली बोलता है कि मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी एक ऐसा रैंडम सा बहुत सरफेस बना हुआ है, ठीक है। अब आपने एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, लेट्स से वो कितना आपके पास कुछ भी Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, लेट्स से वो कितना आपके पास कुछ भी Q2,
एंड एक चार्ज आपके पास यहाँ पे Q3 होगा। तो गॉस लॉ बोलता है, और ये वाला सरफेस को मैं कुछ भी S नाम दे देता हूँ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ कहता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे फ्लक्स रहेगा थ्रू दिस S सरफेस, दैट विल बी इक्वल्स टू द Q टोटल, जो भी आपके पास टोटल चार्ज है कहाँ पे, इनसाइड, डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो S वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है आपके पास? एक Q1 रखा है, एक Q2 रखा है। तो क्या मैं दोनों चार्जेस को ऐड करके नेट चार्ज निकाल सकता हूँ? Yes, sir. तो Yes, आपके sir. पास यहाँ पे जो भी पाई एस है, पाई एस सिंपली कितना हो जाएगा आपके पास? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। True. यहाँ पे Q3 क्यों नहीं लिया? No, sir. Q3 क्यों नहीं लिया? कोई आइडिया? So क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सरफेस के बाहर है, सरफेस के बाहर। Yes, sir. सरफेस से बाहर है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी चार्ज यहाँ पे सरफेस से बाहर लाई करता है, हम उस वाले चार्ज को एक्चुअली में कंसिडर नहीं करते हैं। ये क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई doubt इस वाले पार्ट में? किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. परफेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे भी शुरू करते हैं नेक्स्ट। बिफोर दैट आपके पास हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है आपके पास कि एक यहाँ पे क्यूब है, अगेन ये वाली साइड क्या है? एक्स है, ये वाली साइड क्या आपके पास वाई है, एंड ये वाली साइड क्या आपके पास जेड है। ऑब्वियसली दिस विल बी ओरिजिन। मैं फिर से नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, एंड दिस इज ई एफ ओ, दिस विल बी जी। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन which is 10 I cap. Again, it is Newton per coulomb. So you have to find the net flux through the tube. आपको इस वाले ट्यूब के अबाउट में से नेट फ्लक्स बताना है कि आपके पास कितना रहेगा। गाइस ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अभी के लिए टाइम 5:09 हो रहे हैं। यू गाइस हैव until 5:12. प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट लेट मी नो अगर किसी को कोई आंसर आता है तो। जो आप लोगों ने अभी किया है मतलब इस वाले क्वेश्चन में काम कर गया है, बट वो सभी क्वेश्चंस में काम नहीं करेगा। कैसे? आपके पास एक बार चेक करो, एक बार ध्यान से देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले ये चेक करो कि इस वाले ये जो हमारे पास शेप दिया हुआ है इसमें कितने साइड्स या फिर कितने फेसेस हैं। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, राइट? तो आपके पास अगर आपके पास 6 फेसेस हैं, इसका मतलब क्या है? आपने 6 अलग अलग कैलकुलेशंस कर, 6 डिफरेंट कैलकुलेशंस। अगर आपको 6 अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है तो डेफिनेट सी बात है हर एक फेस के लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे। इज दैट करेक्ट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हर एक फेस के लिए एक कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या चीज करेंगे, इसमें ना हम एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सा एरिया वेक्टर किस तरफ में जा रहा है? तो एरिया वेक्टर जैसा आप लोगों ने मेरे को ऑलरेडी बताए हुए भी हैं, ये वाला पीछे जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ, ये वाला नीचे की तरफ, एंड ये वाला जो है ये इस तरफ में आ जाएगा थोड़ा सा, एंड एक पीछे वाला कुछ पीछे की तरफ में चला जाएगा। राइट? एग्री करते हैं यहाँ तक? Yes, sir. Guys? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपके पास कोई सा भी एक फेस ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने आपके पास यहाँ पे एक फेस लिया हुआ है, मैं फ्लक्स निकालना चाह रहा हूँ ए बी सी डी से। आपके पास इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। बट जो भी आपके पास इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आपके पास? आगे की तरफ, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90। अगर आपके पास एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ई ए कॉस ऑफ 90। दैट सिंपली मींस कि फ्लक्स कितना है आपके पास? 0. क्या सेम केस ए डी ई जी का भी होगा? बिल्कुल सिमिलर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम केस किसका होगा आपके पास? बी सी एफ ओ
एंड Yes, एग्जैक्टली sir. किसका होगा? FOG Yes, sir. Yes, sir. फॉलोइंग दिस पार्ट. तो Yes, आपके Yes, पास sir. यहाँ पे मतलब बेसिकली 6 में से 4 फेसेस का तो कितना हो गया आपके पास? 0 ही हो गया. तो 4 फेसेस, इनका कितना फ्लक्स आपके पास? सिंपली 0. कोई भी डाउट है तो? No, किसी sir. No, को भी sir. नहीं. नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे क्या चीज कर सकते हो, चेक करो. अब आपके पास यहाँ पे जी हाँ जी बोलो सर. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? ऑलराइट, श्योर. इस वाले केस में अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आपके पास मैंने यहाँ पे ABCD का एक्सप्लेन किया है. ABCD में आपके पास जो भी एरिया वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है. हाँ, कोई बात नहीं. आपके पास ABCD में जो भी एरिया वेक्टर है वो कहाँ है? ऊपर की तरफ जा रहा है. बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है आपके पास? आई कैप की तरफ. दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपके पास? 90 डिग्री. तो अगर आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 0. यहाँ तक फॉलो कर रहे हो जी? जी यहाँ तक फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है. तो ABCD की वजह से यहाँ पे जो भी फ्लक्स आया है वो कितना है आपके पास? सिंपली 0 आया है. अब एग्जैक्टली सेम फेस के जैसा आपके पास 3 और फेसेस के लिए होगा. कौन कौन से फेसेस हैं वो आपके पास? नीचे वाला फेस OGEF जो नीचे वाला है उसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ आएगा आपके पास? नीचे की तरफ. और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? आगे की तरफ. अगेन दोनों कितना एंगल बना रहे हैं आपस में आपके पास? 90 डिग्री. तो उसके लिए भी फ्लक्स कितना आएगा? 0. लाइकवाइज किस किस के लिए रहेगा? ADEG एंड BCFO. इन चारों के लिए भी, इन दोनों के लिए भी आपके पास जो भी एरिया वेक्टर है वो कहाँ कहाँ आएगा? एक तो K कैप में आएगा और एक नेगेटिव K कैप में आएगा. पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चल रही है? आई कैप में. तो इन दोनों के साथ में एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा आपके पास? 0 डिग्री. एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 0. फॉलो कर रहे हो यहाँ तक? जी हाँ. Yes, sir. ठीक है. तो आपके पास अब यहाँ पे 4 में से 4 फेसेस का तो 0 ही हो गया. अगर मैं चेक करता हूँ ABOG फेस का, ABOG फेस के लिए आपके पास एरिया वेक्टर कहाँ पे जा रहा है? पीछे की तरफ. बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा Yes, रहा है sir. आपके पास? आगे की तरफ. आगे कितना? दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपके पास? 180 डिग्री. 180. तो आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा? EA cos ऑफ 180. दैट सिंपली 180. मींस दैट इज नेगेटिव ऑफ EA. E. राइट. लाइकवाइज आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ DCFE की, DCFE में जो भी आपके पास फ्लक्स है वो कहाँ पे है? आपके पास एरिया वेक्टर आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पे है? सामने है. एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में आपके पास यहाँ पे? 0. 0. 0 डिग्री. कितना हो जाएगा? ये 6 में से 4 फेसेस का 0 आया है, 2 फेसेस का हमने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट किया है. तो अगर आपको नेट निकालना है, नेट के लिए क्या करोगे? आपके पास इन सबको ऐड कर दोगे. अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो कितना रहेगा? -EA प्लस EA विच विल अल्टीमेटली गिव यू द रिजल्ट दैट इज 0. इस वाले वे में आपने कैलकुलेट करना होता है हर एक उसके अबाउट में कि आपके पास कितना कितना फ्लक्स रहेगा. ये क्लियर है ये वाली चीज? बताओ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट. नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ. यहाँ पे नहीं, घर पे ट्राई करना, बट ट्राई करना है, काफी इंपॉर्टेंट है. Yes, sir. ये एक्स है, ये क्या आपके पास? ये यहाँ पे y है एंड अगेन आपके पास ये यहाँ पे z है. ठीक है. जो भी आपके पास मैं साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब को मैं कुछ भी a बोल रहा हूँ. आपके पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर अल्फा x पावर 2/3 आई कैप. ठीक है. आपके पास कुछ इस वाली तरफ में वो चल रही है. आपको बताना है कि आपके पास इसका टोटल फ्लक्स कितना आएगा. कोई भी डाउट है यहाँ पे? No, sir. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास ऐसा होमवर्क ट्राई करना. अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. चलो. अब आपके पास नेक्स्ट चीज ये वाले क्वेश्चंस हो गए हैं. लेट्स डाइव इनटू गॉस लॉ एप्लीकेशंस. ऑलराइट. क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि आपके पास एक ये वाला क्यूब है. क्यूब की जो भी साइड है दैट इज ए.
यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है पूरे के पूरे रीजन में, दैट इज अल्फा x की पावर 2/3 एंड ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन आई कैप। तो आपको इस वाले क्यूब के अबाउट पे से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितना फ्लक्स यहाँ पे आएगा। क्या समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं? तो एप्लीकेशंस इसके आपके काफी सारे आते हैं। आई गेस आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूल में भी स्टडी किए होंगे कि आपके पास इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। हम बस उन्हीं एप्लीकेशंस को रिविजिट करेंगे एंड आपके पास चेक करेंगे कि इनके क्या क्या मतलब किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं एंड क्या क्या आपके पास इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ ड्यू टू लॉन्ग वायर, इसका मतलब क्या है आपके पास कि कंसिडर करो कि आपके पास एक ऐसा वायर है, आपके पास एक ऐसा यहाँ पे वायर है। अब जो भी वायर है ये आपके पास काफी ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, मतलब कि ऊपर भी बहुत इंफिनिटी तक जा रहा है एंड नीचे भी स्ट्रेच होकर कहां तक जा रहा है आपके पास इंफिनिटी तक। आपके पास ये पॉइंट पी है, इस वाले पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि आपके पास इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तब वाला केस आप कैसे कर सकते हो? आपके पास यहाँ पे पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास कुछ ना कुछ राइट साइड में रहेगी। अगेन राइट साइड में क्यों रहेगी आपके पास? क्योंकि हम अभी के जो भी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेट्स से वो कितनी है आपके पास यहाँ पे कुछ भी लैम्डा है। तो अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है एंड जो भी पॉइंट पी है, पॉइंट पी तक का जो भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज सिंपली, अगर मैं उस वाले डिस्टेंस को कितना मान लेता हूँ कि कितना डिस्टेंस आपके पास कुछ भी स्मॉल आर डिस्टेंस है। इस वाले केस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का फॉर्मूला है दैट इज 2k लैम्डा अपॉन आर। आपके पास 2k लैम्डा अपॉन आर का ये जो भी फॉर्मूला है ये किस वाले केस के लिए आपके पास? जब भी एक क्या होता है, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है एंड उससे आप आर डिस्टेंस दूर पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है आपके पास 2kp/r। फॉलो कर रहे हो यहाँ तक गाइस? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अगेन जो भी इसका डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन क्या रहता है आपके पास? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन क्या आता है? परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम वायर, क्योंकि वायर की जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उससे हमेशा दूर की तरफ में जाएगा। ये क्लियर है? अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी का वायर ले लेता हूँ तब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी का वायर लेता हूँ तब क्या होगा? कोई आइडिया? Opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे मैंने अवे लिखा है, तब क्या लिख दूंगा मैं आपके पास? टूवर्ड्स। ऑलराइट, अरे ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब इसके बेसिस पे चलो मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कि आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। मान लो कि आपके पास यहाँ पे ये ऐसे दो अलग अलग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। जो भी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज 3 लैम्डा एंड इसकी कितनी है आपके पास? -5 लैम्डा। ठीक है, दोनों के बीच में जो भी आपके पास यहाँ पे भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज लेट्स से कुछ भी डी के बराबर में भी वाला डिस्टेंस में यहाँ पे ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस है ये वाला? वी के लिए डी है। अब मेरे को इस वाले पॉइंट पी पे कैलकुलेट करनी है कि आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगर इस वाले पॉइंट पी का डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से मान लो कितना आपके पास कुछ भी कितना मान लें, चलो डी ही मान लेते हैं कि आपके पास कितना डिस्टेंस है, डी ही इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे एक बार गाइस ये वाला क्वेश्चन? बताओ। Yes, sir. ठीक है, 5:24 हो रहे हैं अभी, 5:26 तक का टाइम है, तो जल्दी से ट्राई करो।
गाइस आंसर आया कुछ? मैं हेल्प करता हूँ, आप कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हो। चेक करना एक बार, बहुत ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस लाइक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं नीट लेवल के पेपर। आपके पास अगर ये पॉइंट पी है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे कितने वायर्स हैं? 2 वायर्स हैं। आपके पास जो 3 लैम्डा वाला वायर है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड्स, कुछ इस तरफ में आएगा। लेट्स से इसमें मैंने क्या बोल दिया, कुछ भी E1 बोल देता हूँ। एंड -5 लैम्डा की वजह से किधर आएगा आपके पास? लेफ्ट में। लेट्स से इसे कितना बोल देते हैं आपके पास? Inward. E2। तो अगर मैं यहाँ पे E1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, फॉर्मूला क्या था आपके पास? 2k लैम्डा। कितनी है इसकी वैल्यू लैम्डा की आपके पास? 3 लैम्डा ओवर r। r यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है आपके पास यहाँ पे? टोटल 2d। तो कितना हो जाएगा? 3k लैम्डा बाय d। एंड लाइकवाइज अगर मैं E2 कैलकुलेट करता हूँ, अब E2 की मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। अगर डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसका मतलब मैं नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा आपके पास यहाँ पे, मैं पॉजिटिव साइन को मैं कंसीडर करूंगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हो तो क्या रहेगा आपके पास? 2k लैम्डा कितना है आपके पास इसका? 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इसका? d। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 10k लैम्डा बाय d। राइट। तो आपके पास आगे की तरफ में कितना चल रहा है आपके पास? 3k लैम्डा बाय d। पीछे की तरफ में कितना चल रहा है आपके पास? 10k लैम्डा बाय d। 10k lambda. ऑब्वियसली नेट किधर आ जाएगा? पीछे की तरफ कितना आएगा? 10 माइनस 3 विच इज 7k लैम्डा बाय d। 7k lambda. समझ में आया वाला पार्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन है इस वाले पॉइंट, ये जो एग्जैक्टली एक पॉइंट है, इसे मैं पॉइंट Q बोल देता हूँ, जो कि एग्जैक्टली हाफ वे पॉइंट पे है d/2। इस पे आपको चेक करना है कि आपके पास इस पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। और बाकी कोई भी डाउट आज की क्लास में गाइस?